हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोगेट में जा चुका है एंड दिस रीडिंग विल बी फ्रॉम द टाइम सैटर्न रेट्रोगेट में गया है टू द टाइम सैटर्न रेट्रोगेट में है। ओके, तो इसका क्या असर होगा आपके कनेक्शन पे, वो चीज़ हम अभी चेक करने वाले हैं। देयर आर टू पाइल्स इन दिस कनेक्शन. द फर्स्ट pile is Smshan Kali and the second pile is Kali Yantra. Okay, choose your pile, take your time. जिस भी पाइल की तरफ आपको ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, चूज दैट पाइल, यूज योर इंट्यूशंस. ओके, आई होप आपने अपना पाइल अभी तक सेलेक्ट कर लिया हो. अगर नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू पाइल 1. हाय पाइल 1, अगर आपने ये पर्टिकुलर कार्ड सेलेक्ट करा था देन दिस इज योर रीडिंग. दिस इज विजिबल, it should be. Okay, so you just put it right over here ताकि आप देख सको इस पर्टिकुलर कार्ड को. ओके, अरे खबर है. ओके, या फिर आई कैन जस्ट ओके, wait a second, it will be visible over here as well. हाँ ठीक है. So if you chose स्मशान काली, ये हम बाद में देखेंगे. If you chose स्मशान काली as your pile, then it means either you are going through a very rough time in your life. First of all, काफ़ी difficult times आप गुजर रहे हैं फिलहाल, and it more feels like you are losing a part of you. Okay, क्योंकि स्मशान काली है ना ये. So you know what I get through this particular card, हर रात का सवेरा होता है. रात हमेशा नहीं रहती. Okay, there is something in your connection that is giving you anxiety, that is making you question कि क्या ये the end है या ये starting है. You are not clear. आपको क्लैरिटी नहीं है कि कनेक्शन ख़त्म हुआ है, कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, कनेक्शन का क्या हुआ है. यू डोंट नो एक्चुअली. यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम. यू हैव दिस थ्रस्ट ऑफ क्लैरिटी, आपको ऐसे भूख लगी है, ऐसे प्यास लगी है क्लैरिटी की, कैसे तो मिल जाए. You might be Aries or Capricorn, Gemini, Libra. Yeah, you might be. Not necessarily, but yeah, you might be. Okay. अब let's get deep into the reading. So we'll check out the past of this connection, the present of this connection and the future of this connection. Now what I am gonna do is मैं एक कार्ड निकालूंगी, the past according to your person, the past according to you and the past according to the universe, and same is gonna happen for the present and for the future as well. ठीक है. Breathe in, breathe out. Imagine your person's face or their name and breathe in, breathe out. Okay.
लेट मी जस्ट टेक आउट द कार्ड्स एंड फिर मैं आपको बताती हूँ. Okay. Okay. यू नो ऐसे होता रहेगा कि मैं कार्ड्स सारे साथ में निकाल रही हूँ एंड देन मैं कार्ड्स बता रही हूँ आपको, मतलब द रीडिंग. तो यू कैन जस्ट skip this part if you want. The bottom of the deck is the strength. Now it feels like, okay, it feels like आपके पर्सन ना पास्ट में ना इस कनेक्शन के टूवर्ड्स काफ़ी एनर्जेटिक थे, काफ़ी इट वॉज गिविंग देम द फुलफिलिंग एनर्जी. They were totally into this connection, okay? They were totally in this connection and they felt complete in this connection. But आपकी एनर्जी ऐसी थी कि you wanted to take it slow. It can be scenarios कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, some of you will resonate to this कि your person was rushing in the connection but you wanted a slow moving connection, okay? Because your person was so into their feelings, वो अपनी feelings में इतने ज़्यादा थे कि उनको इस connection को ऐसे चलाना था, ठीक है? But you were using your practicality, okay? And you were quite adamant, okay? ये horse move नहीं कर रहा, ये horse move नहीं कर रहा, this horse is not going anywhere, ठीक है? तो this was your energy. You were pretty adamant, you were pretty stoic. And the universe, of course एक इंसान की एनर्जी इतनी ज़्यादा अटकी होगी, एक इंसान की एनर्जी इतनी ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी होगी, तो यूनिवर्स उस कनेक्शन को होल्ड पे डाल देंगे, ओके? And that is exactly what happened. There were some clarity in this particular connection जो कि आपको चाहिए थी, क्योंकि आपके कार्ड में यहाँ पे बैकग्राउंड येलो है. There was some clarity जो कि आपको चाहिए थी इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि आपके पर्सन ने नहीं दी. Because can you see the clouds, okay? Shit. Yeah, so the clouds. So आपके पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है. इट फील्स लाइक मोर कि उन्होंने वर्ड्स यूज़ करे हैं, एक्शंस यूज़ नहीं करे हैं, या फिर आपको एक फुलफिलिंग एनर्जी नहीं दी है जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके, जिससे आपको रियलिटी पता लग सके, जिससे आपको उनकी फीलिंग्स पे ट्रस्ट हो सके. बिकॉज यूनिवर्स का कार्ड ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन जहाँ पर आप टोटली अपने इंट्यूशंस पे रिलाय कर रहे हो, क्योंकि द सन इज right behind your head but you are not able to see it. तो clarity आपको provided नहीं थी, you are totally relying on your own intuitions, इसलिए आप काफ़ी slow moving थे इस connection में, because you didn't know कि connection कहाँ जा रहा है, कैसे workout करेगा. You have no idea, and even right now you don't have any idea, because the present energy, your person is first of all resisting this connection right now. We will get into it कि क्या है उनकी energies, but your person is resisting this connection and it feels like आप लोगों में कुछ तो लड़ाई हुई होगी, मे बी, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है एंड द सेम वॉन्ट्स आर इन दिस पर्टिकुलर कार्ड जो कि आपके पर्सन का कार्ड है. सो द रीजन वाई यू वर फाइटिंग, वाई यू वर आर्ग्यूइंग विद दिस पर्टिकुलर पर्सन इज द मेन रीजन कि ये इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, ओके?
यू आर स्टिल कन्फ्लिक्टेड, यू आर स्टिल कन्फ्लिक्टेड, यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि ये हुआ क्या है. यू आर, ट्रस्ट मी पाइल वन, इफ अभी तक की आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, यू फील लाइक यू आर डूइंग टेरेबल इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो, आपको नहीं चीज़ें पता हैं. आपके पर्सन तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, दे आर नॉट एंजॉइंग इट. क्योंकि आपके साइड की ग्राउंड तो फिर भी ग्रीन दिख रही है, इनके साइड का ग्राउंड तो खाली है, इट्स लाइक अ डेजर्ट. ठीक है, तो उनको फॉर श्योर आपकी कमी फील हो रही है, बट दे आर रेजिस्टिंग दिस कनेक्शन राइट नाउ, क्योंकि उनके लिए ये कनेक्शन फिलहाल एक हेडेक है. दे फील लाइक दे हैव डिड एवरीथिंग जो कि वो कर सकते थे, एंड स्टिल वो चीज़ वर्कआउट नहीं करी. सो नाउ दे आर रेजिस्टिंग दिस कनेक्शन. जो भी आप लोगों के छोटे मोटे भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उनको वो अपने दिमाग में इतनी बार रिपीट पे चला रहे हैं कि दे आर tired. They are tired with their own mind with this connection, because not because anything happened recently, but जितने भी arguments आपके इनके साथ हुए उन सबको वो repeat में अपने दिमाग में चला रहे हैं, और hence they are tired. Universe का कार्ड आया है, the tired card, where there is nothing left. इनके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में there is nothing left in this connection. Okay, they are like this dead man. इनको लगता है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है. The very weird thing is, this is a love reading, okay? This is a love reading. But यहाँ पे कोई भी कप की एनर्जी नहीं आई है. There is a lot of passion in this connection. बहुत passion है, बहुत intensity है इस connection में. But the actual love, it's not visible until now. अभी तक मुझे as such कोई love वाली feeling नहीं नज़र आई है. या तो ये connection इतना ज़्यादा अभी ऐसे टाइम पे चला गया है, ऐसे साइकिल में चला गया है, वेयर फीलिंग्स आर नॉट विजिबल. फीलिंग्स आर समथिंग यू कैन नॉट फील राइट नाउ, योर पर्सन कैन नॉट फील राइट नाउ, क्योंकि आप लोग या तो सिर्फ एक्शन, एंगर, इम्पल्सिव एक्शंस ले रहे हो, या फिर टोटली माइंड यूज कर रहे हो. देयर इज नथिंग लाइक कम सेट एंड लेट्स टॉक. ओके, द फ्यूचर एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन इज, when I say the future energy, it means December तक की energy. Okay. Oh, look, we have the Queen of Wands and the King of Wands. The Queen of Wands is your person's energy, and it feels like they are trying to gain back the confidence they feel they have lost. ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनका ये जो कॉन्फिडेंस गिरा है इस कनेक्शन में रह करके, उस कॉन्फिडेंस को रिगेन कर रहे हैं, बट दे आर रिगेनिंग इट इन अ वेरी फेमिनाइन वे. ओके, बाय फेमिनाइन आई डोंट मीन कि आपके अगर पर्सन मेल हैं तो वो फीमेल जैसे बिहेव कर रहे हैं, या फिर अगर आपकी पर्सन फीमेल हैं तो वो एक्सट्रीमली फीमेल जैसे बिहेव कर रही हैं. दिस इज जेंडरलेस रीडिंग. तो बाय फेमिनाइन एनर्जी आई मीन in the receiving energy. Okay, I feel, yes, there were conflicts, yes, they were tired, but you were tired as well, and they are in the receiving energy basically, and the universe wants you both to take actions. मतलब universe ये नहीं चाहता कि कोई एक रिसीविंग एनर्जी पे रहे, कोई एक गिविंग एनर्जी में रहे. यूनिवर्स वांट्स बोथ ऑफ यू टू बी इन द गिविंग एनर्जी. चलो, आपके पर्सन तो फिर भी रिसीविंग एनर्जी में है, विच एक्चुअली मीन्स दे आर स्टिल इन द कनेक्शन. ठीक है, दे आर स्टिल होपिंग फॉर अ बेटर कनेक्शन, क्योंकि इसने येलो कलर का कपड़ा पहना है, विच इज द जॉयफुल एनर्जी. Universe wants you both to take action, but what you are doing is you are running away. Not running away, you are sailing away basically. You are tired, you don't want to continue this connection, you are still using your logics. Okay, but आपको क्या चीज़ नहीं समझ आ रही है is आप अपने साथ ना अपने पास्ट का बैगेज भी लेकर के जा रहा. कैन यू सी, ये इंसान सेल तो कर रहा है, बट विद these two people, ये पास्ट बैगेज है आपका इमोशनल बैगेज है ये, और जो कि आप इस कनेक्शन से लेकर के आगे बढ़ रहे हो. एंड
विच बेसिकली टेल्स अस कि आप इस कनेक्शन को छोड़ने के लिए नहीं छोड़ रहे हो, आप इस कनेक्शन को छोड़ रहे हो क्योंकि आपको इस कनेक्शन से कुछ मिल नहीं रहा है. ओके, लेट्स गेट डीपर. बॉटम ऑफ द डेक वॉज स्ट्रेंथ. आप कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को, खुद को थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आई फील कि आप थोड़े से एंक्शियस हो अभी, आप थोड़े से फियरफुल हो अभी, बिकॉज आई कैन फील इट इन माई गट्स राइट नाउ. आपको हो सकता है स्टमक पेन हो, या फिर आपको हेडेक हो, या आपके लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम हो. ओके, या राइट रिस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो. ठीक है, these are some symptoms where you just know कि your nervous system is right now burning. ठीक है, खराब हालत है. One more card. Okay, the lovers is here and the bottom of the deck is 6 of wands. ठीक है, I am gonna tell you. फोर ऑफ पेंटिकल्स, मैं सब बताऊंगी. चलो ठीक है. टू ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, टू ऑफ swords. So right now your person's energy regarding you, not regarding the connection, regarding you, they are somewhat confused. They are either they are very busy in their career, in their own life. देखो, अगर यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आपकी, सो योर पर्सन कैन कम बैक. इफ योर क्वेश्चन इज क्या आपके पर्सन वापस आके आपसे बात करेंगे, यस दे कैन कम बैक, बट दे आर नॉट गोना गिव मोर इन दिस कनेक्शन. मतलब मोर क्या, यहाँ पे वेरी लिटिल. ठीक है, क्योंकि कैन यू सी ये जिस तरीके से बांट रहा है, so that is the energy they are gonna provide you. Bread crumbling, I think this is known as. Okay, and the lovers is here now. The lovers can actually tell us, I don't know if anything is visible or not, but yeah, the lovers tell us that you still have a choice. क्योंकि यहाँ पर clearly समझ आ रहा है कि there is no balance in this connection right now. I don't know, मेरी slip of tongue बहुत हो रही है, so you might be having some feelings within you जो कि आपसे express नहीं हो रही है, आपको words नहीं मिल रहे उसको express करने के लिए, या फिर your person's throat chakra is blocked right now. So 6 number can be significant. 6 number, 6 mulank can be significant, or the earth sign can be significant. Earth sign is Taurus, Capricorn, Virgo. It feels like they are juggling, and they might be comparing their life with you and without you. And वो इस कंपैरिजन को पूरे कंप्लीट तरीके से करने के लिए दे माइट मेक अ चॉइस टू जस्ट कम बैक एंड गिव यू सम ऑफ देयर एनर्जी, ताकि फिगर आउट कर सके कि उनको आपके साथ अच्छा लग रहा है या आपके बिना अच्छा लग रहा है. ओके, दिस कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 6 days or 6 weeks. Okay, this is a very general reading, तो बहुत लंबा गैप है, बट ठीक है, 6 days or 6 weeks. Now
their intention towards you, pile 2, is something. They don't want to look at this connection. They don't want to, address this connection. उनको इस connection को अभी accept नहीं करना, उनको इस connection को अभी highlight करना ही नहीं अपनी life में, because they feel overburdened, they feel exhausted, they feel somewhat, they overthink a lot and they don't like these feelings जो उनके मन में आती है ना, वो इन feelings को पसंद नहीं करते. Okay, and they are a runner. मे बी आपके पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल हैं, मे बी इमोशनली अवॉइडेंट हैं, मे बी दे don't want to take any step, but they are running away right now. Okay, they're just sitting and waiting for you to make any move, literally, because the hanged man is over here. So they're just waiting for you to make a move towards them. I just feel like with the bottom of the deck, which is 4 of Pentacles, it feels like कि आपके पर्सन आपको मूव करते हुए देखना चाहते हैं, नॉट बिकॉज उनको इस कनेक्शन में अभी कुछ एक्शन करना है, बट बिकॉज जस्ट टू हैव द सेटिस्फैक्शन कि आप अभी तक कहीं गए नहीं हो. 2 of Cups is here. 2 की एनर्जी भी हैवी है. Your connection needs balance. Yeah, what I said, they just want to make sure that you're still there, you're still hoping, you're still putting efforts so that they can again go around and come back to you. They're just, it is like कि वो डोर नॉक कर रहे हैं ताकि वो चेक कर सके कि दरवाजा बंद हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, अगर नहीं बंद हुआ है तो दे विल रन अवे एंड वो और टाइम लेंगे एंड देन दे विल कम बैक. दे आर जस्ट चेकिंग अराउंड. ओके, regarding their feelings, your person may have a cat. Okay, ये ऐसे शो कर सकते हैं कि ये अपने काम में काफी ज्यादा बिजी हैं. They somehow they want some kind of guidance, some kind of help from the universe, जो कि उनको नहीं प्रोवाइड करी जा रही है, because the fairy is right here. ठीक है, बट द फेरी इज नॉट हेल्पिंग दिस वुमन. वो फेरी हेल्प नहीं कर रही है. सो दे वॉन्ट द फेरी टू हेल्प देम, बट द फेरी इज नॉट हेल्पिंग देम. देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Swords and 2 of Cups again. So I would say that you guys can be past life partners or something. Past life partners or some karmic lessons are attached to it. जब तक ये karmic lessons complete नहीं होंगे, you cannot move out from this connection. If you are feeling stuck in this connection कि आपको इस connection से निकलना है but anyhow आप नहीं निकल पा रहे हो, then this is definitely a connection where the karmic lessons are not learnt. आपके जो lessons हैं वो आपने नहीं सीखे हैं या आपके person ने नहीं सीखे हैं, या फिर आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर रहे. बाय लेटिंग गो आई डोंट मीन कि माइंडफुली लेटिंग गो, आई जस्ट मीन कि जो भी कार्मिक पैटर्न रह चुके हैं उन सबको भूल करके अपनी लाइफ में जेन्युइनली आगे बढ़ना. नॉट विद एनी होप, नॉट विद with any revengeful resentment feeling, but just moving out. They want your energy, pile 1. I was about to say pile 3. You can check pile 3 as well. और हो सकता है आप pile 3 की तरफ भी attract हो रहे हो. They want your energy. They feel you have this creative aura. आप काफ़ी creative इंसान हो, आप काफ़ी jolly इंसान हो, आप काफ़ी warm इंसान हो. They just feel the happiness with you and they don't want to lose it, but
उसके साथ उनको एफर्ट्स फिलहाल पुट नहीं करने हैं इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, हेंस दे आर पुटिंग दिस टाइनी लिटिल एक्शंस ऑफ देयर, टाइनी लिटिल एनर्जी ऑफ देयर इन दिस कनेक्शन, ताकि आप टिके रहो वहां पर. Yeah, see, tiny stars are there. जैसे छोटी छोटी होप दे करके वैनिश हो जाना. Even the flame is not completely visible. You see, blurry है काफी ज़्यादा flame. They are not clear with their intentions because they are choosing not to clear it to you. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग में चीज़ें क्लियर नहीं है. अभी हम वो भी फिगर आउट कर लेंगे कि चल क्या रहा है. ठीक है, why they are not giving you the clarity, but they are deliberately holding back the clarity. Okay. Five of Swords is here. Your person is definitely having some ego issues or some attitude, जहाँ पर या तो आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिनसे आपने जब भी आर्ग्यू करा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर क्लियरली हुए हैं इस कनेक्शन में, बट आपने जब भी आर्ग्यू करा है तब इस पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी गलती नहीं मानी है. ओके, एंड दैट इज बिकॉज इनको हमेशा जीतना होता है. वेन यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, they just want to win the conversation, they just want to win the argument. They are not fighting for the connection, they are fighting for themselves. अगर आप लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में भी बात कर रहे हो और आप लोगों के ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हैं, तभी इंसान अपने पॉइंट को रखता जाएगा, बिकॉज देयर ईगो इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, क्योंकि आप उनके अगेंस्ट में बोल रहे हो. एंड दिस कार्ड क्लियरली सेज यू कांट बी राइट ऑल द टाइम. So your person do have some ego issues. Again, I would say with the Two of Cups, they just like being in your energy. And the bottom of the deck is Two of Swords. It means confusion. It means they actually don't have any clarity. Okay, wait. Indecisive energy इनकी. They don't want to see the clarity. दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू द क्लैरिटी, क्योंकि इनको प्रोवाइड नहीं करनी. एंड ये इस कनेक्शन की रियलिटी के टूवर्ड्स देख नहीं रहे, क्योंकि फिर तो चीजें इनके दिमाग में भी क्लियर हो जाएंगी. अवॉइडेंस, दे आर अवॉइडिंग दिस कनेक्शन एंड यू राइट नाउ. ठीक है, लेट्स गेट मोर इंफॉर्मेशन. फाइल नंबर 1 के पर्सन उनको क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है. ओके, there can be a third party influence in this connection. That's enough. Page of Cups is the bottom of the deck. Okay. Oh, look, we have the Shamshan Kali and Death card, which actually means the same thing. Okay, transformation. So we have if you feel like they are avoiding this connection, pile 1, then they are not only just avoiding this connection, they are avoiding their own self, basically. They are avoiding their own inner calling. If you feel like कि ये person आपको completely छोड़ के भाग चुके हैं, that's not the case. ठीक है, because we clearly have Page of Swords over here. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी क्यूरियस हेड से हैं. ठीक है, वो काफ़ी क्यूरियस हेडेड हैं फिलहाल. अगर आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल लोग हैं आप लोगों के, तो दे आर आस्किंग अबाउट यू थ्रू देम. एंड इफ you don't have any mutuals, then they might be stalking you on any social media app.
देयर इज सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस. हो सकता है कि ये किसी पार्टी में गए हों, हो सकता है ये अपने किसी फ्रेंड सर्कल से मिले हों या किसी स्पेसिफिक फ्रेंड से मिले हों, या फिर वर्क एनवायरनमेंट. एनी पर्सन, एनी थर्ड पर्सन. आई एम नॉट टेलिंग यू कि यहाँ पर कोई तीसरा इंसान है इस कनेक्शन में. एनी थर्ड पर्सन, विच एक्चुअली मीन्स इट कैन बी देयर फ्रेंड्स, इट कैन बी देयर फैमिली, एनीवन, has given them this advice to just hold back their energy and to just look into the connection. It is like किसी इनके दोस्त ने, किसी भी पर्सन ने इनको ये एडवाइस दी है कि बिफोर डाइविंग डीप इन द कनेक्शन, वो एक कौन सी मूवी है, आलिया भट्ट की एक मूवी है ना, जहाँ पर शाहरुख खान का एक डायलॉग है, जहाँ पर वो बोलता है कि बिफोर बाइंग एनी फर्नीचर, बिफोर बाइंग एनी चेयर, उस चेयर को यूज करके देख लेना चाहिए. दैट इज एग्जैक्टली वॉट योर पर्सन इज डूइंग. दे आर लुकिंग थ्रू यू, दे आर लुकिंग at you from every aspect and figuring it out whether you are good for them or not. They might be actually exhausted. ठीक है, इनके ऊपर हो सकता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों ऑलरेडी. ठीक है, बट some of them are just their defense mechanisms. Seven of Wands is over here. Again, no cup की energy other than Three of Cups, and Three of Cups is like the third party intervention. If you feel like they are enjoying their life, they are not. Because the Hermit is over here, Death is over here. They are not enjoying their life. First of all, they might act like उनको फर्क नहीं पड़ता, या फिर they are having all the fun, या फिर they might be flirting with someone else. They actually might be doing it. Okay. But they are doing it to avoid you emotionally. They don't want to feel the pain that you are missing from their life. इनकी लाइफ में कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. अगेन एज आई सेड कि फ्यूचर में यूनिवर्स आप लोगों को किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में डालना चाहता है, और इनकी डेथ के जस्ट नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है. सो इनको ट्रांसफॉर्मेशन में डाला ही इसलिए जा रहा है ताकि अपनी इस एनर्जी में आ सके. ओके, जिस एनर्जी में इनको यूनिवर्स लाना चाहते थे. So what is actually happening? The thing that is happening right now is उनके लिए खुद काफ़ी एग्जॉस्टिंग ये टाइम पीरियड है, क्योंकि वो खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशंस आर नेवर एवर हैप्पी. वो खुद कुछ ऐसे एक्शंस कर रहे हैं जो कि वो खुद नहीं करना चाहते हैं, जो कि वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के कर रहे हैं. दे विल कीप डूइंग इट अनलेस दे गेट दिस थिंग इन देयर माइंड कि वो कर क्या रहे हैं, एंड दे डोंट हैव एनी आई ओपन्ड. ठीक है, किसी भी कार्ड में वो डायरेक्टली कार्ड की तरफ नहीं देख रहे हैं. दे आर अवॉइडिंग इट, दे आर ब्लाइंड साइडेड. वो नहीं देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. दे आर जस्ट गोइंग थ्रू एवरी काइंड ऑफ हार्डशिप. उनकी लाइफ उनकी तरफ जो भेज रही है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, एंड जो भी एडवाइसेस उनके आसपास के लोग उनको दे रहे हैं, दे आर जस्ट लुकिंग थ्रू इट. ओके, वाई पाइल 1 को क्लैरिटी नहीं दे रहे उनके पर्सन. द लवर्स इज हियर अगेन. 6 number can actually be very important for you. You might be seeing 10-10 a lot. 7 of Swords is over here again. 8 of Swords again. Clarity. आपको clarity इसलिए नहीं मिल रही है pile 1 because
आपके पर्सन ये चीज़ जानते हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है, जो भी उनको फील होता है वो उनको किसी और के साथ अभी तक फील नहीं हुआ है, एंड दे आर वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर ट्रुथ। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि दे नो कि अगर उनको इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है तो उनको अपनी ईगो यूज़ करनी पड़ेगी, उनको थोड़ा सा क्रेडिट आपको भी देना पड़ेगा, थोड़ा सा वैल्यू आपको भी देना पड़ेगी, थोड़ी सी वैलिडेशन, थोड़ी सी अप्रिसिएशन, थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्स आपको भी देने पड़ेंगे, और उसके लिए वो रेडी नहीं है, बिकॉज द रनर कार्ड इज ओवर हियर अगेन, 7 of Swords. They are running. They are running with this particular fact that they might be loving you. Lovers का कार्ड है यहाँ पे. They might be loving you and they are running away from the fact कि अब उनको भी connection में efforts डालने पड़ेंगे to be in this connection, to have your energy, to be with you and to have feelings for you and to have you in their life. That particular thing is making them very, very uncomfortable. Like, can you see, this particular person has everything, the world, the wants, everything, but ये अनकंफर्टेबल उसमें नहीं जाना चाहती, ये अनकंफर्टेबल, ये अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, बिकॉज घर का बाहर का एनवायरनमेंट इज प्रिटी अनकंफर्टेबल. They are actually, they know what they are doing and they are doing it deliberately, because they don't want to address it right now. Again, I feel some of the messages are coming on a repetitive state, but can't help it now. Anything? Page of Swords again, Page of Wands, 7 of Pentacles, 9 of Cups and the Judgment. Bottom of the deck, Knight of Cups. Finally some cups की energy other than 2 of Cups. They are afraid of this connection, pile 1. They are afraid of this connection because आप उनको इतनी सारी चीजें फील करा रहे हो करा रहे हो कि that is making them very, very uncomfortable. They are trying to figure it out कि ये क्या हो रहा है उनके साथ. We have every page over here. Page of Swords, Page of Wands, Page of Pentacles, Page of Cup. They are in a very immature energy. इसलिए इनको ट्रांसफॉर्मेशन में भेजा जा रहा है ताकि वो किंग की एनर्जी में डेवलप कर पाए. Now when I say king की एनर्जी, I don't mean any gender. I just mean the energy, the masculine energy, जो कि सब में स्टेबल होनी चाहिए. ठीक है. We have Page of Swords, Page of Wands, 9 of Cups, 7 of Pentacles, and the Judgment. This is a very heavy energy, pile 1, because the Judgment card is here, Death card is here, the Hermit card is here. They are going through a major transformation. या तो आपके कनेक्शन ने इनको इतना हेवी फील करा दिया है कि they are on the path of spirituality and they are trying to figure it out कि ये connection इतना strong क्यों है through spirituality. They might be looking into the past life stuff, कि वो जान सके कि past life में तो कुछ नहीं था. It might be one of the case. Purple color can be significant. You might be having purple hair or purple dye, or your person might be having that, or some tattoos. Again, see some stars. Some stars are there on the bus. Some stars यार. कुछ तो है या कुछ होप का तो कुछ लोचा है यहाँ. लोचा is not my word, ठीक है. It feels like ये connection एक stuck energy में पहुंच चुका है because you both are waiting. आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि वो कुछ पता लगा सकें कि इस कनेक्शन में ऐसा क्यों हो रहा है, इस कनेक्शन की ऐसे एनर्जी क्यों है, और आप वेटिंग की एनर्जी में हो बिकॉज यू डोंट नो वेयर दिस कनेक्शन इज गोइंग.
आई डोंट नो, मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है. यू माइट बी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड और यू माइट बी एंग्री ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन. बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि यहाँ पर यार इस पर्सन की कुछ ऐसी कमी, मतलब कुछ ऐसी मेजर फॉल्ट नजर नहीं आ रही अदर देन दे आर रनिंग अवे, दे माइट बी होस्टिंग यू. बहुत कम कम्युनिकेशन है या नो कम्युनिकेशन है, दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. बट उसके अलावा दे आर देमसेल्व्स ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि चल क्या रहा है. ओके, लेट्स गेट सम मोर डिटेल थ्रू oracles. let's figure it out कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं या इस कनेक्शन में म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं. क्लोजर, someone is just looking for the closure in this reading. टॉक्सिसिटी, आप लोगों को लगता है कि इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है. settling, you just feel like this particular person or your person is feeling like they are not fulfilling the connection, or you might be feeling that they are not fulfilling the connection, they are not giving the energy this connection deserves or you deserve. ठीक है. voids, यहाँ पे कुछ void वाली फीलिंग है, कुछ कमी है आपकी या आपके पर्सन की लाइफ में. विंडो, देयर इज स्टिल सम होप. आप लोगों के मन से कंप्लीटली होप गायब नहीं हुई है, आपके पर्सन के मन से कंप्लीटली होप गायब नहीं हुई है. गिफ्ट्स, imperfections. Okay, if bottom of the deck, right path. So whatever you are thinking to do right now, that's the right way. if you or your person or both of you feel like कि सामने वाले में ये कमी है, सामने वाले में वो कमी है, everyone is imperfect, that is one of the message. अगर आपको इस पर्सन ने कोई भी गिफ्ट दिया है, anything, can be candles, can be any jewelry, a necklace, can be some flowers or a flower vase. अगर ऐसा हुआ है then completely they gave it from their heart and nothing less than that. Okay, if you have any doubt कि भाई ये इसने क्यों दिया, ये इसने इस वजह से तो नहीं दिया, कहीं इसके intentions बुरे तो नहीं थे, then no, वो completely उन्होंने अपने मन से दिया है. करंटली आपके लिए सजेशन है कि लेट गो दिस कनेक्शन. ठीक है, डोंट होल्ड ऑन टू इट, दिस इज नॉट द राइट टाइम. ठीक है, मर्क्यूरी रेट्रोगेट में भी आप लोग अगेन कम्युनिकेशन आप लोगों की ख़राब हो सकती है, कम्युनिकेशन इश्यूज, या फिर एक्चुअली आप इस इंसान से मर्क्यूरी रेट्रोगेट में मिले हो या मर्क्यूरी रेट्रोगेट से चीज़ें ख़राब हुई हो, या आप लोगों के चार्ट्स में मर्क्यूरी डेवलेक्टेड हो थोड़ा, या आपके पर्सन के चार्ट में, या फिर आप लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि मर्क्यूरी इज नंबर 5 एंड नंबर 5 इज transformation. 555 is transformation. There are some red flags in you and your person, both of you, जो कि आप और आपके person दोनों ही जानते हैं, but one of you is a narcissist, bro. When I say narcissist, when this card says narcissist, it doesn't mean कि narcissist ही है वो इंसान. It can also mean कि they are just thinking about themselves, they are too selfish, they are too full of them. Okay, there are some red flags in this connection जो कि आप दोनों इग्नोर कर रहे हो, जो कि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम दे सकते हैं. सो जस्ट सिट डाउन एंड टॉक, बट टॉक भी कहीं हो रही है, मर्क्यूरी रेट्रोगेट है. आप लोगों में से किसी एक की हेल्थ खराब हुई हो सकती है या फिर फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हुई हो सकती है, तो दैट नीड्स सम ऑफ योर अटेंशन. ओके, high honor, your person do want that ego boost, that appreciation, that respect.
I can literally see someone bowing down in respect. So they want that level of respect. Yeah, they want to be treated as a mature person, that they have all the knowledge. Can you see the books behind this man? The books represents the knowledge, and the world, the globe over here. This particular person just thinks कि इनको सब पता है, इनको सब पता है, इनको सब knowledge है, तो they deserve the whole respect. The bottom of the deck is pathway, and can you see the butterflies? Yeah, this connection is transforming, and it is transforming for the good, because can you see कि इस कार्ड के initial उसमें red color, might be something about red color, but red color might be a favorite color of your person or yours, ठीक है, या फिर you wore or your person wore red color for the first time when you met. Okay, so can you see the darkness जो कि इसके initial में है, और end of the tunnel is कितनी light energy है. Yeah, so this connection is going through a major transformation, and you both need to have some patience for it. Okay, let's get some guidance for this connection, and then we will get some guidance for you. Okay, for one's connection, compromise. Ayyo, itna nahi. Please, spirit guides. There is some waiting energy. Even the pathway shows the waiting energy of around 1 year or 1.5 years. ठीक है? No need to worry. If you're worrying कि ये connection का क्या ही हो रहा है, क्यों ही हो रहा है, so you don't have to worry about it. Okay, there are some compromises you need to make in this connection. ठीक है? Some compromises, some transformations even you are going through. Meditation brings answers. जो भी आंसर की आप उम्मीद कर रहे हो ना, दैट कम्स फ्रॉम विद इन. ठीक है, अगर आपको जानना है कि क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही, अगर आपको जानना है कि वाई दिस पर्सन एक्टेड लाइक दिस, यू हैव द आंसर विद इन यू. यू कैन नॉट कीप गोइंग टू अदर पर्सन, अदर पीपल कि ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दे डोंट नो द कनेक्शन. Only you and your person knows the connection. So the answer lies within. You have to meditate for it. You have to sit with yourself to find the answers. And there is this waiting energy. Of course, there is a void in your life and you will have to wait to fill it up. ठीक है? And जैसा कि यहाँ पर भी विंडो का कार्ड आया था, where it is आया था यार, yeah, this window का card. So it means hope, and waiting energy actually shows कि थोड़ा सा wait करना पड़ेगा. Even the pathway shows थोड़ा सा wait करना पड़ेगा, but there is still some hope. ठीक है? And the yes card, if you are comparing some situation and you are asking if this is the correct scenario, then yes, it is. Now let's get some guidance for you. If you are manifesting something, no, it is working. It is working, and you should keep manifesting. You might be ignoring yourself nowadays. You might be ignoring yourself nowadays. तो आपको अपने ऊपर फोकस करने को बोला जा रहा है. अपने इनर चाइल्ड को वुंड मत करो फॉर अ कनेक्शन. कीप योर एनर्जी विद इन. ठीक है, आप जितना ज़्यादा इस पर्टिकुलर इंसान में, इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी डालोगे फिलहाल, दैट इज गोइंग इन टू अ ब्लैक होल.
ठीक है, क्योंकि अभी ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा, कहीं पे भी नहीं जा रहा ये कनेक्शन, ठीक है। तो आपको एनर्जी अपने ऊपर डालनी चाहिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में डालनी चाहिए, अपनी if you were planning to do something, do that. If you're planning to, start something, initiate something, do that. That will keep you grounded. Okay, don't lose the hope, but don't attach yourself from the outcome. या दैट वॉज योर रीडिंग। कितनी रेजोनेट करी आपके साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो देन यू कैन फाइंड द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द कमेंट सेक्शन। ओके, अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो फॉर द फर्दर रीडिंग्स। ओके, हैव अ गुड डे। हाय पालतू, अगर आपने ये पर्टिकुलर कार्ड चूज करा था काली यंत्र, देन दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू। ओके, लेट्स चेक द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस पाइल। You might be meditating, connecting spiritually a lot. You might have visited your hometown, जहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है। You do affirmations या फिर meditation. And through, did I just say meditation? Yes, I did. Manifestation. Okay. So you are someone who believes strongly in affirmations and meditation, manifestation. You actually might be doing a lot of meditation. I don't know. It might be just my energy. I am fumbling a lot today. It feels like you are praying. You are praying for this connection. You don't have much hope left in this connection, but you are still very hopeful. मतलब you are still praying कि कुछ तो बदल जाए, किस तरीके से तो ये connection better हो जाए। I have put the card over here ताकि आप लोग देख सको। Okay, let's dive into your energy. सबसे पहले हम देखेंगे the past, the present and the future. Past में हम 3 cards निकालेंगे and same goes to the other 2 phases as well. First card will be of your person, second card will be of you, third card will be of the universe. ठीक है, so आपके हाथ में मे भी कुछ चोट वोट लगी हो क्योंकि my hand is reddish kind of, so yeah, just another sign. तो मैं सबसे पहले कार्ड्स निकाल लूंगी एंड उसके बाद मैं मतलब बताती हूँ। ओके, we have 3 cards and 2 of them are major arcanas. Okay. Okay. इस कार्ड को ले लूंगी। मैं बोलने जा रही थी आपकी एनर्जी काफी क्योटिक लग रही है। ठीक है, what happened? The past was really very good. ठीक है, the bottom of the deck is 2 of swords. Okay. Okay, so pile 2. It feels like आपके past में ना your person was pretty confident regarding this connection. Very confident, very bold. They were having very passionate energy towards you. Chemistry काफी थी इस connection में. And they actually were very satisfied in this connection.
because the sunflower is over here. She is wearing yellow. Intense chemistry, intense bond. मे बी ये काफ़ी जल्दी में बनी हुई बॉन्ड हो, मतलब आई डोंट सी एनी स्लो बॉन्ड. ये कोई स्लो बॉन्ड नहीं है जिसको ग्रो होने में 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर लग गया हो. इट वॉज वेरी इम्पल्सिव, वेरी इमीडिएट बॉन्डिंग. ओके, एंड योर एनर्जी, it feels like you are a bit traditional. You like following your own traditions. ऐसा हो सकता है कि you and your person do not belong from the same culture or the same caste or the same religion. Any difference जो कि आपको problematic लग रहा था. And you had no answer कि क्या करना चाहिए. Your person was pursuing this connection very passionately. काफ़ी passion के साथ वो इस connection को pursue कर रहे थे, but you were having doubts. And from the universe we have the lovers. It feels like it feels like an intense connection and a spiritual connection. आप लोगों में से कुछ लोगों की राहु की महादशा चल रही हो सकती है. ओके, और केतु की महादशा. देयर इज दिस स्नेक. This connection was actually a very blessed connection by the universe. इस कनेक्शन में हार्मनी थी, इस कनेक्शन में बैलेंस है, इस कनेक्शन में ब्लिसफुलनेस थी. एंड इस कनेक्शन में काफ़ी क्लैरिटी थी, बिकॉज द सन इज विजिबल. इवन दो द क्लाउड्स आर देयर, द सन इज स्टिल विजिबल. सो इस कनेक्शन में क्लैरिटी काफ़ी थी. अगर कुछ कन्फ्यूजन होती थी, ये कनेक्शन मुझे कैसा कनेक्शन लग रहा है, अगर कुछ कन्फ्यूजन होती थी, यू गाइज वर टॉकिंग अबाउट इट. यू गाइज वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग इट. आप लोगों ने कभी कोई टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा पास्ट में जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हुई हो और आप लोगों ने वो चीज़ डिस्कस ना करी हो. एवरीथिंग वॉज क्लिस्टर क्लियर इन दिस कनेक्शन. देन वॉट हैपेंड, वी विल डाइव इन टू इट. But your person's current energy is 6 of Cups. They are heavily missing you. They really want to come back. And you want the reconciliation as well. The death is here. But when we talk about 6 of Cups, जो कि उनकी energy है, it means they are missing the innocence of this connection. They are missing the sweet love of this connection. They are missing the child. If one of you were a bit childish in this connection, they are missing that energy, they are missing that innocence. Whereas you want to reconcile with this connection, with this person, but आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. आपको उस साइकिल में वापस से नहीं जाना. Your person wants to repeat the cycle and you want a new cycle to begin. यूनिवर्स ने आप लोगों को अभी डाला है दूर, उन्होंने इंटेंशनली डाला. अभी हम उसको भी चेक करेंगे. बट यहाँ पर ना आपके पर्सन ने मुझे कुछ करा हो ऐसा दिख रहा है, ना आपने कुछ करा हो ऐसा दिख रहा है. इट वॉज ऑल प्लान्ड बाय द यूनिवर्स. कुछ तो यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हुई है, बिकॉज ऐसे कैसे हम द लवर्स से डेथ पे चले गए हैं. ओके, योर पर्सन's future energy, they might come back. They might actually come back with a playful energy, with an immature energy, with some flirty text. They might come back, but they are scared themselves. वो काफ़ी खुद भी डरे हुए हैं, but they don't want to lose you. Can you see how the person is looking at the fish? Although the fish is out of the water, but still the fish is also looking at the person. So चाहत इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि your person is moving out of their comfort zone just to be with you. And you seem very, very impulsive. Knight of Swords.
very impulsive. You are taking actions without thinking much. You are just bouncing on it. You don't want to take any decisions right now. You are bouncing the decisions. And the universe can clearly see that your defense mechanism is completely different and your person's defensive वे इज कम्प्लीटली डिफरेंट. आपके पर्सन को डिफेंसिव होना है, इसलिए दे आर कमिंग अप विद दीज इमेच्योर टेक्स्ट एंड इमेच्योर टॉक्स, एंड आपको डिफेंसिव होना है, इसलिए आप डिसीजंस ही मेक नहीं कर रहे. यू बोथ आर एक्टिंग फ्रॉम अ वेरी डिफेंसिव एनर्जी विद अ वेरी कोपिंग मैकेनिज्म वाली एनर्जी, बट दोनों का मकसद सेम है. खुद को डिफेंड करना, खुद की एनर्जी को डिफेंड करना, खुद के लिए बाउंड्री सेट करना, खुद को प्रोटेक्ट करना. ओके, दोनों का मकसद सेम है. And both are indecisive. Both are in a very indecisive energy. इनको नहीं लूंगी मैं अभी, ठीक है. Two of Swords, a very indecisive energy, काफी stagnant connection हो चुका है. You both don't know what to do, how to do, where to go, what to not do. You don't have any information, and hence here I am. Okay. So let's get into your person's mind. अगेन मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूंगी. आई विल बी चेकिंग आउट देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड देयर इंटेंशंस. ओके, इफ यू डोंट लाइक कि सिर्फ कार्ड शफल हो रहा है एंड सम कार्ड्स आर पॉपिंग अप, देन यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट. वन क्लैरिटी, ठीक है. Okay, so let's get into the reading. Your thoughts, your person's thoughts, pile number 2. It feels like they want this connection to move, क्योंकि उनको एक स्टकनेस की एनर्जी आने लग गई है. They feel a stagnant energy. Seven of Cups is here. Wheel of Fortune is here. Page of Pentacles is here. And Six of Pentacles is here. So, number 13, number 4, number 6 and number 9 can be important. आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन में अब इमोशंस नहीं बचे हैं रिगार्डिंग यू, बट इट फील्स लाइक दे आर कवरिंग इट अप. दे आर कवरिंग इट अप विद देयर
they are hiding it. They are hiding their own emotions because they don't know what you are feeling. They are very afraid. आपके पर्सन काफ़ी डरे हुए हैं, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे ओपनली नहीं बोल पा रहा है. That is their thought. They don't know where this connection is going. Wheel of Fortune is over here. The wheels are definitely turning. Destiny definitely move कर रही है. Time definitely move कर रहा है. लाइफ डेफिनेटली मूव कर रही है, बट दे डोंट नो कि ये कनेक्शन उस मूवमेंट के साथ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. द सेम डाउट यू आर हैविंग, वही चीज उनके दिमाग में भी है. सो जितना आप कंफ्यूज हो उतना वो भी कंफ्यूज्ड है. एंड आई फील देयर इज नो कम्युनिकेशन और अ वेरी लेस कम्युनिकेशन. ओके, देयर इज दिस पर्टिकुलर एनर्जी जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को रीच आउट करने से डरे हुए हो. I just once want to check आपकी एनर्जी. Ace of Cups as the bottom of the deck. Okay. You really want to restart this connection, pile 2. You really want to do that. But you are tired. आप थके हुए हो by taking the actions again and again. It can be one of the scenarios जहाँ पे आपने काफ़ी सारे efforts डाल चुके हैं already. And क्योंकि आपको इसका कोई result नहीं मिला है, hence आप अब होल्ड बैक कर रहे हो. एंड अब जब आपने होल्ड बैक करना स्टार्ट करा है, तब योर पर्सन इज लूजिंग देयर माइंड, बिकॉज उनको अब नहीं समझ आ रहा कि वेदर यू आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस इन योर लाइफ एंड यू आर एक्सप्लोरिंग देम और यू हैव जस्ट गिवन अप ऑन दिस कनेक्शन. दे डोंट नो कि आपके साइड क्या चल रहा है, बट दे डेफिनेटली नो कि अब आप रीच आउट नहीं कर रहे हो उनको. एंड दैट इज द मेन रीजन जिस वजह से इनके दिमाग में इतना क्योस चालू है. Yeah. It feels like definitely a regret. 5 of Cups is here as the bottom of the deck. Definitely regret. They know they have messed up. They know उनको जब एक्शंस लेने थे, उनको जब बात करनी थी, उनको जब कम्युनिकेशन होल्ड करनी थी, तब उन्होंने नहीं करी है. Hence, they don't know how to approach you. They definitely don't know how to approach you, but they do want to approach you. Because for the feelings, we have King of Wands, we have 5 of Wands, we have 10 of Pentacles, we have the Cozy Witch, which is actually the Fool, and 9 of Pentacles. Now, what these energy are telling me is आपके पर्सन अभी भी वो पैशनेट एनर्जी आपके टूवर्ड्स फील तो करते हैं, एंड दे रियली वॉन्ट टू टेक एनी एक्शन राइट नाउ, बट क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, हेंस दे आर वेरी कॉन्फ्लिक्टेड विद इन देमसेल्व्स कि अब आप इस कनेक्शन में हो भी कि नहीं हो. अगर नहीं हो तो दे डोंट वॉन्ट टू टेक एनी स्टेप. एक्चुअली आपके पर्सन ना रिजेक्ट होने का डर रखते हैं. ओके, आपके पर्सन को डर है कि वो रिजेक्ट हो जाएंगे, एंड देन उनकी यहाँ पे कुछ तो ईगो की बात है. ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज को हुए सिर्फ 5 दिन हुआ, एंड हेंस यू आर फीलिंग लाइक कि इतना भी क्या हो गया, 5 दिन पहले तो मैंने कांटेक्ट करा था आखिरी. बट दे आर गेटिंग इट लाइक 5 दिन हो गए हैं. ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी ईगो क्लैशेस है, एंड दे डोंट वॉन्ट टू फील रिजेक्टेड बाई यू, बट दे नो कि उन्होंने जो भी करा है वो गलत करा है, एंड हेंस दे डोंट नो कि अब आप उनको लाइफ में एंटरटेन करोगे कि नहीं करोगे. दे डोंट नो कि आप अब उनके साथ इस कनेक्शन में स्टैंड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो. दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी, क्योंकि जब आपको क्लैरिटी चाहिए थी तब इन्होंने आपको क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करी, एंड हेंस दे जस्ट फील लाइक कि जो चीज़ इन्होंने करी थी वो चीज़ आप भी करने वाले हो इनके साथ. ओके, दे रियली
do see a future with you, because we have 9 of Pentacles. But again, the way you express yourself and the way they express themselves are two completely different things. It can happen like आपकी love language different है, उनकी love language different है, and यहाँ पे फॉर श्योर इंटेंस केमिस्ट्री है, इंटेंस पैशन है, इंटेंसिटी है, यहाँ पे प्यार भी है, प्यार, अटैचमेंट, समथिंग है, फीलिंग्स हैं यहाँ पर, बट दोनों की वे ऑफ एक्सप्रेसिंग काफी डिफरेंट है. वेरी डिफरेंट, एंड हेंस आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग काफी हुई है. आई जस्ट फील लाइक ये जो भी क्लैशेस हुए हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुए हैं, बिकॉज आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, इनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंप्लीटली डिफरेंट है. एंड व्हेन यू से समथिंग और यू डू समथिंग फॉर देम, दे फील लाइक something else, and when they do or say something, you feel like something else. They really want to have a new start. They really do want to have a new start from the zero, but they don't know where they are standing right now. If you feel like कि ये person अपनी life में बहुत खुश है, no, नहीं. There's something about autumn season, या तो आप या आपके person autumn season से belong कर सकते हो. अ वेरी क्लीशे लाइन, आई डोंट नो, मे बी आपके पर्सन ऐसी लाइन्स वो करते हो, बट आपके बिना उनकी जिंदगी ऐसे पतझड़ के मौसम जैसी हो चुकी है. ओके, हाउ, what are their intentions? Again, they are somewhere afraid of being rejected and being extremely dependent on you, because they appreciate their own independence very much. ठीक है, so they are somewhat afraid of, it can be in two scenarios. First of all, they are afraid to lose their own individuality, and secondly, they know you are an independent person and they are fearful of it. उनको डर लगता है आपकी individuality से, because you are individual, you have your own mind, you are gonna deal with your life in your way, and somehow, somewhere, even they have to compromise. They really want to have a new connection with you. Ace of Cups, यहाँ पे भी bottom of the deck is Ace of Cups. So they really want to have a new energy with you. Why I'm saying this is Death card is over you, over here, and आपकी एनर्जी में डेथ कार्ड आया था प्रेजेंट में. सो दे आर अग्रीइंग ऑन योर टर्म्स. अगर ये इंसान वापस आते हैं, we will check the timeline, we will check whether this person will come back or not. ये person communication करेंगे कि नहीं करेंगे, we will check that. अगर ये इंसान वापस आते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मानेंगे. Okay, the lovers is here. They actually feel the extreme pull. मतलब उनको पता है there is something very intense going on here, and they are accepting it. But again, they are too afraid to make any move. वो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं because they are afraid कि भाई सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा. Hence they are sleeping. Let's check. आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मुझे हो रही है. Bottom of the deck, Four of Wands. So, pile 2, it just feels like your person is not gonna approach you.
and if you will do approach them, they will actually reply, they will actually respond, they will definitely respond, they will like to have a conversation with you. बट जब वो आप उनसे क्वेश्चन करोगे ना कि भाई अगर तुम मुझे इतना याद कर ही रहते तो तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं करा, दे विल डेफिनेटली टेल यू दैट दे वर टू एक्सॉस्टेड, उनकी खुद की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी. दिस कैन बी अ पर्सन जो कि अपनी हर जहाँ पर इनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होती है, जहाँ पर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, वहाँ पर इनके पास बहाने रेडी होते हैं. सो दे विल टेल यू हंड्रेड्स ऑफ रीजंस कि ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, काफ़ी एग्जॉस्टेड था, मेरी खुद की लाइफ काफ़ी ख़राब चल रही थी, एनीथिंग. बट द कोर रीज़न इज दे डू हैव ईगो. दे डोंट वॉन्ट टू परस्यू यू बिकॉज फिर उससे ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि भाई आप सही वो गलत. दिस पर्सन डू हैव सम ईगो प्रॉब्लम. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक समथिंग. ओके, पाइल टू, अगर ये पर्सन आपके बुलाने पे वापस आ भी जाते हैं तब भी आपके पर्सन ना दो से तीन कॉन्वर्सेशंस के बाद चले जाएंगे बिकॉज द पेज ऑफ वॉन्ड्स इज इन रिवर्स. ये इमेच्योर एनर्जी की भी इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है, मतलब very inconsistent energy. And why it is happening is once they feel like कि okay you are not gone anywhere, आप तो वापस से उनको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, their ego will be boosted. ठीक है, तो उनको ये चीज़ जब रियलाइज हो जाएगी दैट ओके ये इंसान तो अभी भी यहीं पर है, इसका मतलब हमारा कनेक्शन सेव है, they will run away again. Not literally run away but they will be in their own world again. Your person can be Aries or you can be Aries. And मैंने ये जो कार्ड निकाला है it was for फ्यूचर में कुछ हो भी सकता है इस कनेक्शन का कि नहीं हो सकता, बिकॉज योर पर्सन इज इन दिस एनर्जी. तो आप चाहे कितनी भी एनर्जी पुट कर लो, जब तक आपके पर्सन नहीं चाहेंगे तब तक ये कनेक्शन मूव नहीं कर सकता है. एंड हिंस आई आस्क्ड कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, एंड इट केम एज 2 ऑफ सोर्ड्स. सो द अल्टीमेट फ्यूचर, ओके, bottom of the deck, King of Cups. So you have to handle this whole situation very maturely. मैंने ultimate future का भी कार्ड निकाल लिया and there are 2 major arcanas for it. So the Temperance and the Hanged Man. Your future, pile 2, majorly do not depend on you. It depends on the divine timing. This is not the right timing for the connection. It can be like, let me check, it feels like कि ये right person हो सकते हैं आपके लिए, right? अगर आपको ऐसा फील हुआ है कि अरे ये तो completely उसी टाइप का person है जिस टाइप का person मुझे चाहिए था हमेशा से, that can be possible, but this is not the right time for the connection. Knight of Wands. Your person is very hot and cold. तो अगर देखा जाए पाइल 2, तो ये पूरा जो सिनारियो, ये जो पूरा कनेक्शन है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते. The only thing you can do is have some emotional maturity.
मेच्योरली डिसीजंस मेक करो, इम्पल्सिव डिसीजंस मत मेक करो, पेशेंस रखो, थोड़ी सी स्टैग्नेंट एनर्जी में रहो, क्योंकि ये कनेक्शन आने वाले 6 महीने के लिए तो कहीं नहीं जा रहा, ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा है. यू डोंट हैव एनी आंसर्स, यू डोंट हैव एनी क्लू, यू डोंट हैव एनी क्लैरिटी कि ये कनेक्शन क्या है, क्यों है, कैसे है, खत्म हो गया या है. एंड यू विल बी स्टक इन दिस एनर्जी फॉर एटलीस्ट अपकमिंग 6 months. So be ready for it. You might be having headaches. You are not emotionally, you are not stable. Pile 1. Pile 2. Maybe there are some messages for you in pile 1. But yeah. You actually may receive a message from your person. ठीक है, आने वाले 7 days में you might receive a message का कार्ड है, a message, a call, anything. You might even receive some big gestures like a gift, but ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं रहने वाले हैं. दिस इज अ सडन थिंग हैपनिंग, अ वेरी इम्पल्सिव एनर्जी, जहां पर आपके पर्सन बस ये चेक कर रहे हैं कि यू आर इन दैट लॉक और नॉट. ठीक है, आप अभी भी हो इस कनेक्शन में, आप अभी हो लॉक्ड इन या फिर नहीं हो. 777 might be important. Number 777 or 7 number or 17 number, 5, 8. Yeah. You, pile 2, आई हैव टू टेल यू दिस, आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है इस कनेक्शन से फिलहाल वो फुलफिल नहीं हो रही है, एंड दैट इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड राइट नाउ फॉर अ रीजन. वो रीज़न ये है कि आप लोगों की एनर्जीज जो है ना वो मिसमैच्ड हैं फिलहाल. यू आर वाइब्रेटिंग ऑन दिस एनर्जी कि आपको इससे और इस कनेक्शन से और इस पर्सन से फ़र्क पड़ता है, एंड आपके पर्सन इस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी, या फिर दुनिया क्या सोचेगी, या फिर फैमिली क्या सोचेगी, या फिर सामने वाला क्या सोचेगा, या फैमिली फ्रेंड्स में क्या इमेज रहेगी. दे आर थिंकिंग अबाउट द कम्युनिटी अ लॉट. ठीक है, तो ऐसे में पाथ कैसे ही क्लियर होगा, दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में काम कर रहे हो. अब इट कैन बी मिररिंग एनर्जी कि आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो और आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, बट वन ऑफ यू इज थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पा रही. एंड हेंस ये जो भी आपका पेशेंस वाला टाइम आ रहा है ना, वेयर यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट फॉर द कनेक्शन कि ये कनेक्शन कहाँ तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है. ओके, वेट. दिस पर्टिकुलर टाइम इज अ गिफ्ट फॉर यू, क्योंकि ये आपको 2 चीजें सिखाएगा. एक चीज कि पीस में कैसे हो जाते हैं, ऐसे क्योटिक एनर्जी में पीस में कैसे जाया जाता है. दूसरी चीज, जिसका भी आप बेसब्री से वेट करो वो आपको मिल जाए ये जरूरी नहीं है. नाउ दिस इज नॉट द सिनारियो कि आपको ये चीज नहीं मिलेगी. इट कैन जस्ट बी लाइक कि मे बी 6 महीने बाद आपको ये रियलाइज हो कि मैं वेट भी क्यों कर रही हूँ, या मैं क्यों वेट कर रहा हूँ. ओके, बिकॉज इमोशनल मेच्योरिटी का कार्ड था यहाँ पर. सो दिस कनेक्शन एक्चुअली नीड सम इमोशनली मेच्योर पीपल, क्योंकि इट फील्स लाइक कि एक 2nd क्लास के बच्चे को 12th क्लास की इक्वेशन पकड़ा दी गई हो. ये एक हैवी स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, हैवी कार्मिक कनेक्शन हो सकता है. इस कनेक्शन से आपको कुछ चीज़ें सीखनी है पार्ट 2, और आपके पर्सन को भी सीखनी है. द मोमेंट आप लोग सीख जाओगे जो भी आप लोगों को सीखना है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. सारी चीज़ें
या डेफिनेटली ठीक हो जाएंगी। या तो ये कनेक्शन इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे करके ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये कनेक्शन एक ब्राइट फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, सो सबकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी, सबके कनेक्शंस डिफरेंट होंगे, सबकी यू नो द इवेंचुअल थिंग डिफरेंट होगी। ओके, तो some of you might be having a closure with this particular person and some of you might be having a bright future with this person. अब आपको अपनी एक personal वो चाहिए तो you can approach me for a personal reading. Again, no, it's not the right time. नार्सिस्ट, ये कुछ कार्ड्स है जो कि पाइल 1 में भी आए थे। यू और योर पर्सन इज कंप्लीटली थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स राइट नाउ। One of you are manifesting the other person or this connection, and if you are doing it, keep doing it because they will be back, of course. Mercury retrograde, no communication, vacation. Maybe आप जब वेकेशन पे जाओ या फिर आपके पर्सन जब वेकेशन पे जाएं या समथिंग रिगार्डिंग द वेकेशन, उस टाइम पे इनका टेक्स्ट आ सकता है, इनका कॉल आ सकता है, समथिंग। या सम ऑफ यू, इनका टेक्स्ट या कॉल आने वाले 7 डेज में भी आ सकता है, 7 डेज या 17 डेज में। इस कनेक्शन को ना एकदम परफेक्ट उससे देखा जा रहा था अभी तक। ओके, सम ऑफ यू माइट बी हैविंग अ वेरी गुड फ्यूचर विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। डेस्टिनी, व्हाट डिड आई से? ये एक डेस्टिनी का टाइम है, ये पूरा एक डिवाइन टाइमलाइन का फेज चल रहा है जहाँ पर आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। सो अदर देन सरेंडरिंग दिस कनेक्शन टू द डिवाइन, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ कुछ इल्यूजन्स हैं थे इस कनेक्शन में जहाँ पर आप लोगों को या आपके पर्सन को कुछ चीज़ें क्लियर होते हुए भी नहीं दिख रही थी। लाइक इट कैन बी, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी लाइक आप लोगों को पता है कि सामने वाले में ये कमी है, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। एंड अब जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नाउ यू आर एक्सेप्टिंग इट, नॉट ओनली एक्सेप्टिंग इट, यू एंड योर पर्सन, यू गाइज आर एक्चुअली थिंकिंग लाइक देखा ये था, मुझे तो दिख गया था, लेकिन मैंने उस टाइम पे कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, लेकिन ये तो ऐसा निकला। स्टॉप ब्लेमिंग द अदर पर्सन। इफ यू डू हैव फीलिंग्स फॉर द अदर पर्सन, स्टॉप ब्लेमिंग देम, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। दे आर लर्निंग देयर लेसन्स, यू आर लर्निंग योर लेसन्स। तो अगर उनमें कोई खामी है ना, द लवर्स इज हियर, यू आर रिफ्लेक्टिंग योरसेल्फ, मतलब मिररिंग एनर्जी है यहाँ पर। तो जो आपको उनमें खामी दिख रही है ना, वो आप में भी है। तो बिफोर यू पॉइंट आउट एट देम, यू शुड बी पॉइंटिंग आउट एट यू। ओके, तो जो खामी आपको उनमें दिख रही है वो खामी आप में भी है। तो ब्रेक द इल्यूजन्स कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। एंड यू और योर पर्सन आर कैरिंग सम बैगेजेस फ्रॉम द पास्ट, यू हैव टू रिलीज इट ताकि ये कनेक्शन आगे बढ़ सके। यू हैव टू रिलीज इट। एज आई सेड, आप लोगों में से कुछ लोगों का काफी अच्छा फ्यूचर है, एंड सम ऑफ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। सो ट्विन फ्लेम जर्नी तो भाई होती है थोड़ी मिररिंग टाइप की। आपको या आपके पर्सन को प्रॉब्लम ही इसलिए होगी फिर क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे की खामी एक दूसरे में दिख रही है। ओके, एंड अगेन एडवेंचर वेकेशन, समथिंग अबाउट इट। या तो आपके पर्सन काफ़ी एडवेंचरस हैं या आप काफ़ी एडवेंचरस हो, आप दोनों को वेकेशंस पसंद हैं, या आप इस पर्सन से वेकेशन में मिले थे या किसी एडवेंचर के थ्रू मिले थे, या इनका मैसेज उस टाइम पे रिसीव हो सकता है आपको। Let's check some guidance regarding this connection. What did I say? यहाँ पे communication नहीं है।
कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आ रहा है। बी असर्टिव, आपको थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। Then we have abundance. This connection might bring abundance in your life क्योंकि ये आपको major lessons सिखाने के लिए आया है. So once you learn the messages, you can get the connection back and even the abundance in your life. Okay. Then we have communicate clearly. It feels like you can talk about anything and everything with this person, but you cannot talk about this connection and this person with the person. मतलब आप दुनिया की सारी चीज़ों की बातें कर सकते हो इस पर्सन से, लेकिन इस कनेक्शन के बारे में, उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में, उस पर्टिकुलर इंसान से बात नहीं कर सकते। सो ऐसी बात करने का भी क्या ही फायदा है ना। तो स्टार्ट कम्युनिकेटिंग क्लियरली, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको दूसरों की एडवाइसेस लेनी चाहिए अभी। यू शुड बी टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम अदर्स। एंड द लास्ट कार्ड इज इफ यू बिलीव कनेक्शन विल बी सॉर्टेड आउट। एज आई सेड, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का काफ़ी बड़ा रोल है, यहाँ पे होप का काफ़ी बड़ा रोल है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का काफ़ी बड़ा रोल है। सो चीज़ें आपके हाथ में हैं भी, लेकिन चीज़ें आपके हाथ में नहीं भी हैं। क्या चीज़ आपके हाथ में है इज when you will be learning your lesson, when you will be figuring out कि ओके मुझे ये चीज़ सीखनी थी, अब मैं इस चीज़ पे काम करूँगा या करूँगी। क्या चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आपके पर्सन का वो चीज़ सीखेंगे, आपके पर्सन का फिगर आउट करेंगे। वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, और जब तक वो चीज़ नहीं सीखेंगे तब तक ये कनेक्शन आगे कैसे ही मूव कर पाएगा। ओके, सो नाउ वील लुक फॉर द गाइडेंस फॉर यू। Baby steps. Action. Follow your intuitions before it makes sense. Your intuitions are screaming at you, it feels like. आपके intuitions ना आपको बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन आप उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि आप इस दुनिया में खो चुके हो। The card is learning how to be human in the world but not of it. आप इस वर्ल्ड के पार्ट हो, बट आपको इस दुनिया में खोना नहीं है खुद को, ठीक है। आपको इतना ग्राउंडेड रहना है कि आप दूसरों की रियलिटी समझ तो पा रहे हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को इस चीज़ के लिए इग्नोर नहीं कर रहे हो। प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर कनेक्शन में जो कि आपको काफ़ी सूदिंग लगती थी, काफ़ी हेल्पफुल लगती थी। लेकिन नाउ इट फील्स लाइक यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन एनी मोर। इवन इफ यू आर डूइंग इट, आप फिर भी ऐसे हल्की सी थोड़ी सी आंख खोल करके देख ही रहे हो। यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। You are a creative person, Pailu, and your way of expressing your things are through creations. Either you are into arts, either you are into mimicking, either you are into writing. Whatever your way of expression is, do that. क्योंकि यू आर होल्डिंग ऑन टू द फीलिंग्स। ये जो भी रिजिड फीलिंग्स आई हैं आपकी लाइफ में, ये जो भी डिवास्टिंग सिचुएशंस आई हैं आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपने अभी अपने विद इन होल्ड करके रखी हुई है। यू हैव टू रिलीज इट, यू हैव टू रिलीज इट थ्रू द वे, जिस भी तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। नाउ दैट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट इट इज अ वेरी क्रिएटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। ओके, सो दीज आर सम गाइडेंस फॉर यू एंड दैट वॉज योर रीडिंग। कितनी रेजोनेट करी आपकी एनर्जीज के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आपको बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। Okay, yeah, so that was your reading. Have a good day. Bye-bye.